Let me change the camera. Okay, let us begin. Seventeen, 8, 2020. Today we will start criteria number 2, which is called EOL, okay, expected opportunity loss criteria. Okay. So here we will calculate the expected opportunity loss, and then we will find out which decision alternative having the less expected opportunity loss, and we will choose that particular stock action. Okay, so now here this is just an alternative approach. It will give the same answer as well as EMV, but uh, the logic is a little different here. So we will find out the opportunity loss for each and every event. Okay, so if we work on our previous day's example, then we do not need to make a profit table again. That's why I will continue with the previous day's example in this new method, but later on we will practice on different problems. Okay, so now here our steps are: number one, prepare the conditional profit table. Is it visible, guys? Please give me a response. Yes, sir, it is visible. Okay, 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 Yes, thank you, sir. thank you. Sir, it's not visible clearly. Somebody is saying that means in my end it's okay. Kisu, sir. Okay, so we will we will prepare the conditional profit table for each decision event combination and write the associated probabilities. Okay, just we have done in previous case. Second, we will determine the opportunity loss conditional opportunity loss by subtracting the payoff from max payoff for that particular event. I mean, for each event you have to do that. Then you can get the table. Number three, calculate the expected opportunity loss for each decision alternative by multiplying the COLs by the associated probabilities. And then we have to select the minimum EOL. That means we are choosing the minimum expected opportunity loss. Laterally, that will give you maximum profit. If the opportunity loss is minimum, that means it is giving you maximum profit. Okay, so let us solve our previous day's problem.
in this another method in EOL criteria or expected opportunity loss criteria. Okay, so let me draw our previous day's conditional profit table. This is possible demand or events. This is probability. This is possible stock action. Here the stock actions were 10 copies. Here that was 11 copies, 12 copies, 13 copies, and 14 copies. The demand was 10, 11, 12, 13, 14. Probabilities were 0.10, 15, 20, 25, 30. This was 200. This all was 200. This 170, 220, 220, 220. 140, 190, 240, 240, 240. 110, 160, 210, 260, 260, 80, 130, 180, 230, and 280. So this was the previous day's conditional profit table. Now our objective is to number 2 determine the COL by subtracting the payoff from the maximum payoff for each particular event. Okay, so this as we have made. Now we need to make a conditional loss table. Conditional loss table. Okay, a second step, we'll redraw it again. These are possible demand or events. Probability, possible stock action or decision alternatives, you can say. 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14. So now what we have to do, these are the events. For each particular event, we have to find the maximum. Okay, so here you can see in this event, for 10 copy event, the maximum of this row is 200. So we will subtract 200 from the maximum. Okay, careful here, listen carefully. For this stock, for this event 10, we will find what is the maximum among all these row. 200 is maximum. We will subtract each values from 200. So if we subtract 200 from 200, it becomes 0. If we
subtract 170 from 200, then opportunity loss is 30. If we subtract 140 from 200, opportunity loss 60. Then if we subtract 110 here from the maximum of this row is 200 minus 110, it becomes 90. And if we subtract 80 from maximum 200, then we get 120. Now please tell me if the step is clear to you or not. क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप मेरे साथ तुम लोग बताते रहना। हम लोग ये सेकेंड जो डिमांड है, मतलब 7 जो इवेंट है, 11 कॉपीज वाला डिमांड, ये पर्टिकुलर इवेंट का हम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 20 20 हाईएस्ट है 220। somebody 20, please 0. अपना स्पीकर बंद करो, वो ओके। सो नाउ 220 से 200 डिलीट करके, मतलब सबट्रैक्ट करके 20 मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे 0, उसके बाद 30, 60, 90. 30, 60, 90। पूरे क्लास बताओ, किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी बताओ। नहीं है, मतलब सब लोग का ठीक ठाक है। ओके, तो नेक्स्ट ये 12 कॉपीज डिमांड होने वाली इवेंट का यहाँ पे कितना आएगा? 40. बोलते रहो। 20, 20, 0, 0 नहीं 30, 30, हाँ 60 इधर 60, 60, 40, 20 20, 0, 0, 30, इधर 80, 40. 80 आएगा। 280 है हाईएस्ट। तो उसके बाद 60, 40 40, 20। 20, ठीक है, तो ये हमारा बन गया कंडीशनल लॉस टेबल। और ये हम लोग का था कंडीशनल प्रॉफिट टेबल। जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम से कॉपी कर लिए। अब हमने सेकेंड स्टेप बनाए, कंडीशनल लॉस टेबल बना लिए। अब हमको बनाना है एक्सपेक्टेड लॉस टेबल। ठीक है, नंबर 3 एक्सपेक्टेड लॉस टेबल कैसे बनाएंगे दिखाते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस टेबल, इसके लिए भी ऐसे हम लोग को जगह बनाना पड़ेगा। ये है इवेंट्स, ये है पॉसिबल स्टॉक एक्शन, ये है प्रोबेबिलिटी 10, 11, 12, 13 और ये 14 हो गया। तो ये होगा 10, 11, 12, 13, 14। तुम लोग जब बनाओगे तो ये जगह थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। तो अभी हमको क्या निकालना है? अभी हमको निकालना है EOL। ये देखो नंबर 3 स्टेप में हमने क्या लिखा है, EOL फॉर ईच डिसीजन ऑल्टरनेटिव बाय मल्टीप्लाइंग द COLs बाय द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज।
ठीक है, तो EOL फॉर ईच डिसीजन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इधर हम फिर से स्टार्ट करते हैं, एक साथ दो टेबल दिखाई देना चाहिए। ओके, तो अभी देखो EOL निकलना पड़ेगा फॉर ईच डिसीजन ऑल्टरनेटिव। तो हमारा पहला डिसीजन ऑल्टरनेटिव क्या है? 10 कॉपीज द न्यूज़पेपर बॉय कैन बाय। तो ये हमारा पहला डिसीजन, मतलब स्टॉक एक्शन डिसीजन ऑल्टरनेटिव हो सकता है, द 10, ठीक है। तो ये 10 का अंदर ये सारे जो रो है ये 10 के अंदर आता है, और ये 10 के अंदर इवेंट 0 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.10। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम है ये सारे कॉलम को इसका एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 इंटू 0.1 मिल जाता है हमको 0। इसको बना लेते हैं पहले। .15 के साथ 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3। सिमिलरली 40 के साथ 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8। 0.25 के साथ 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 15। 0.3 के साथ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2.4। क्यों 2.4 कहाँ से मिलता है? 80 इंटू 0.3 240 होता है, तो 0.3 मतलब एक 24 आता है ना। अब नेक्स्ट 11 वाली हम करेंगे डिसीजन ऑल्टरनेटिव द न्यूज़पेपर बॉय कैन बाय 11 कॉपीज। इसके लिए करेंगे तो क्या होगा बताओ? 30 इंटू 0.1 3 आएगा, 0 के साथ 0.15 0 आता है, 20 के साथ 0.2 4 आता है, 40 के साथ 0.25 10 आता है, और 0.3 के साथ 60 का तो 18 आएगा। सिमिलरली 12 वाली बोलते रहो। समझ में आ रहा है सबका? रिस्पॉन्ड करना, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिपीट करना चाहिए कि नहीं? सर सो हम लोग अभी करेंगे डिसीजन ऑल्टरनेटिव 12 वाली। बताओ यहाँ पे क्या होगा? 6 देन 4.5। 4.5 0 0 5 5 12 12 नंबर। 12 अब ये 13 में 9 9 9 9 6 6 0 0 6 6 फिर 14 18 हाँ हाँ sorry 12 12 10.5 sorry 13.5 13.5 12 12 7.5 7.5 0 0। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्सपेक्टेड लॉस टेबल, ठीक है। अब इसमें से हमको EOL निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, ये कॉलम में जो है इसको हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा इधर 50, इधर मिलेगा 35, इधर मिलेगा 27.5, इधर मिलता है 30, इधर होता है 45, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारा मिल गया है EOL।
फॉर ईच डिसीजन ऑल्टरनेटिव, ये जो ईओएल है ये हमारे सामने है, ये है हमारा ईओएल वैल्यूज। ईओएल मतलब एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ये एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस किस में सबसे कम है? 27.5 में। तो ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस सबसे कम है। तो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस अगर कम होगा तो उस डिसीजन ऑल्टरनेटिव, मतलब ये 12 वाली ऑल्टरनेटिव हमको सबसे कम लॉस करवाएगा। तो इसीलिए हम लोग चूज करेंगे 12 वाली को। तो हम ये आंसर लिखेंगे कि द न्यूज़पेपर बॉय must choose to buy or stock 12 copies by following EOL क्राइटेरिया। अब देखो हमारा जो पहला वाला जो क्राइटेरिया था उसमें 12 आया था और ये ईओएल में भी 12 आया है। मतलब ईवीसी जो है, ईवीसी एंड ईओएल, ईवीसी में हम ईएमपी निकालते हैं, यहाँ पे हम ईओएल निकालते हैं। तो इसमें देखो दोनों क्राइटेरिया में आंसर सेम ही आ रहा है, लेकिन लॉजिक अलग है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में अब तक जितना हुआ है? नो क्वेश्चंस, ओके ठीक है। तो हम अगले टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हमको जानना पड़ेगा EVPI, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब देखो ये जो क्राइटेरियाज हमने अब तक यूज किए हैं इसमें हमको प्रोबेबिलिटीज पता है, लेकिन हम परफेक्टली नहीं बोल सकते कि ये 100% कोई पर्टिकुलर इवेंट ही घटेगा। इसका कोई हमारे पास डेटा नहीं है। प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन 100% कौन सी होगी इसका कोई मतलब हमारे पास कोई भी मतलब डेटा नहीं है कि 100% वही होगा। ऐसा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन होता तो हम कितना प्रॉफिट कर सकते थे वो हमको निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सॉरी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। डिफरेंस समझ में आया? अभी और एक चीज तुमको सीखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड, ठीक है वो बाद में हम करेंगे, पहले इसी से चलते रहें। तो हमको क्या निकालना है, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम रहता कि किसी को कुछ पैसे देके कुछ पैसा खर्चा करके हम परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकल के ला सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि मैक्सिमम कितना हम खर्चा कर सकते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो पहले हम देखेंगे अगर हमारे पास पहले से परफेक्ट इंफॉर्मेशन ईच इवेंट का होता तो हम कितना प्रॉफिट कर सकते थे, वो हम पहले देख लेते हैं। तो हमारे अगर जो प्रॉफिट टेबल है
कंडीशनल प्रॉफिट टेबल अंडर सर्टेनिटी हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए कंडीशनल, अरे क्या करते, कंडीशनल प्रॉफिट टेबल अंडर सर्टेनिटी, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि क्या होने वाला है, इसीलिए हम कंडीशनल प्रॉफिट टेबल अंडर सर्टेनिटी बना रहे हैं। तो इसमें है डिमांड्स, पॉसिबल डिमांड्स और इवेंट्स, ठीक है, और इधर है स्टॉक एक्शंस। इधर जैसे कि हम बना लेते हैं, एक ही बार में बनाएं, प्रोबेबिलिटी, इधर है 10, 11, 12, 13, 14। ये जो जगह हम बना रहे हैं ये हमारा छोटा पड़ रहा है, तुम लोग थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, जब तुम लोग प्रॉब्लम करोगे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। और ये शुरू करेंगे 10, 11, 12, और थोड़ा रूलर वगैरह लेके बनाना कि देखने में अच्छा लगे। 14। सो अगर हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता तो हम ये 10 ही लेते, 10 वाली डिमांड के लिए 10 ही खरीदते और हमारा प्रॉफिट 200 का ही होता। अगर डिमांड 11 होता तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता और हम 11 ही खरीदते, मतलब न्यूज़पेपर पर 11 ही खरीदते और सारे के सारे बिक जाता और उनका प्रॉफिट 220 ही होता। और ये 12 वाली में अगर ये 12 वाली डिमांड हो जाता है तो हमारे पास पता होगा कि 12 भी डिमांड है और उसके लिए हम 12 भी खरीदेंगे और सारे के सारे बिक जाएगा और प्रॉफिट फुल 240 होगा। ऐसे करके 13 के लिए 260 और ये 14 के लिए 280, ठीक है। ये हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन रहेगा तो ऐसे ही हमारा प्रॉफिट टेबल ऐसे ही बनेगा, क्योंकि हम गलती नहीं करेंगे, जितना डिमांड होगा उतना ही खरीदेंगे, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी, ये डिमांड होगा 10 तो इसका प्रोबेबिलिटी 0.1 था। सिमिलरली हम लिख लेते हैं 0.15, 0.2, 0.25 एंड 0.3, ये प्रोबेबिलिटी हमको दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, हम ये साइड में इसको बड़ा करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमको मिला है ईच रो में एक एक डिजिट हमको मिला है ईच रो में, उसको एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कि 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को तो मिलेगा 20, इधर मिलेगा 0.15 के साथ 220 तो 33, ऐसे कर करके मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ 0.2, 48 आया, ये 65 आएगा और ये 84 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हमको टोटल प्रॉफिट अगर निकालना है तो ईपीपीआई निकलेगा टोटल करके 250। मतलब अगर हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन रहता तो हमारा कंडीशन बदल जाता सर्टेनिटी में, तब हम प्रॉफिट कर सकते थे 250 का, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट कर सकते थे 250 का विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। ये अगर हमको पता चलता कहीं ना कहीं कुछ भी खर्चा करके, तो हमको कितना मिलता 250, ठीक है। लेकिन पहले हम देखें कि ईएमवी करके और ईवीसी करके, ईवीसी क्राइटेरिया करके हमारा ईएमवी निकला था कितना, देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, ईएमवी किए थे ये 222.5 222.5, 222.5 इतना रुपीस का हमारा ईएमवी में निकला था पहला क्राइटेरिया में ईवीसी करके। ईवीसी ईएमवी सेम थिंग है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया में हम लोग एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकलते हैं
जो निकल के आया है 222.5। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी है, उसमें से हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 222.5। अगर इंफॉर्मेशन होता तो हमारे पास प्रॉफिट होता 250 का। तो हम कितना ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैक्स खर्चा कर सकते हैं? तो मैक्स प्राइस ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जो होते हैं कि ईवीपीआई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये हम कितना मैक्सिमम खर्चे कर सकते हैं? 250 हमारा ईवीपीआई आ रहा है, माइनस ईएमवी 222.5, तो ये आता है 27.5। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमने मैक्सिमम 27.5 रुपीज खर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो अगर हम इससे थोड़ा कम करेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, लेकिन कहीं भी कीमत पे भी हम लोग ये 27.5 रुपीज से ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए खर्चा नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ईपीपीआई। और ये वाली प्रॉब्लम जहाँ पे तुमको ईपीपीआई निकालने के लिए बोला जाता है, ये बहुत मतलब आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ईपीपीआई निकालने के लिए तुमको ये दोनों चीज जानना पड़ेगा, एक तो कैसे ईओएल निकालते हैं और कैसे तुम लोग का ईएमवी निकालते हैं, और ये ईपीपीआई भी क्राइटेरिया भी जानना पड़ेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम तुमको एक प्रॉब्लम करने के लिए देंगे। जो प्रॉब्लम हो जाने के बाद तुम लोग फटाक से उसका पिक्चर निकाल के मेरा व्हाट्सएप में देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9126420240। ठीक है, प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं। एक डेयरी फार्म wants to determine the quantity of butter it should produce to meet the demand। मतलब वो कितना बटर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड वो कितना बनाएगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है बटर का, प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, तो ये 15 केजी बिकने का, नहीं इसको नहीं देंगे, थोड़ा आसान देते हैं। थोड़ा आसान देखते हैं क्या है। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम देंगे। न्यूज़पेपर बॉय buys newspaper and sells it and he gets the profit। So his buying price 25, मतलब मैगजीन्स का 25 रुपीज बाइंग है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 40 रुपीज का है। उसका जो डिमांड्स है उसका प्रोबेबिलिटीज है 15 डिमांड होने का प्रोबेबिलिटी 0.04, 16 होने का प्रोबेबिलिटी 0.19, 17 का है 0.33, 18 का है 0.26, 19 का है 0.11, 20 का है 0.07। ठीक है,
दिख रहा है प्रोबेबिलिटी सारे के सारे? तो ये है प्रोबेबिलिटी। तुमको क्या करना है, इसका जो कंडीशनल प्रॉफिट टेबल है उसको बना के फोटो खींच के साइड में अपना रोल नंबर डाल के फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करना है। अपना क्लास रोल नंबर फुल 7 डिजिट क्लास रोल नंबर डाल के मुझे व्हाट्सअप करना है या फिर मेल करना है। স্যার ছবিটা একটু ব্লার্ড আসছে, আরেকবার যদি একটু বলেন ওই এইগুলো নাম্বারগুলো। 15 ডিমান্ডের জন্য 0.04, 16 ডিমান্ডের জন্য 0.19, 17 ডিমান্ড জন্য 0.33, 18 এর জন্য 0.26, 19 এর জন্য 0.11, 20 এর জন্য 0.07। So he's asking for the phone number. It's written here, see, 9126 420 240 WhatsApp number। 10 मिनट्स है तुम्हारे पास, अभी 11:40 है। 11:50 में तुम लोग जितना हो जाएगा उतना फोटो खींच के 11:50 में मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। और जहाँ पे तुम ये बना रहे हो उसके साइड में तुम्हारा जो 7 डिजिट क्लास रोल नंबर वो भी लिखना है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट बनाना है। हाँ 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 कंडीशनल प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताओ। कंडीशनल प्रॉफिट टेबल बनाना कंडीशनल है। प्रॉफिट टेबल, हाँ बस कंडीशनल प्रॉफिट टेबल बनाना है। ओनली कंडीशनल प्रॉफिट टेबल बना के उसके साइड में अपना 7 डिजिट क्लास रोल नंबर लिख के 11:50 में मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो मीटिंग में बंद कर देता हूँ। आई होप तुम लोग सब अपने डेटा ले लिए।